آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ جھنگ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لالیہ اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ٹوبہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پی ڈی ایم میں پنجاب کی زلزلے باری رپورٹ جاری۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، میاں والی، ملتان اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کی گہرائی 191 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ متعلقہ انتظامیہ عمارتوں کی چیکنگ میں مصروف ہے۔ پی ڈی ایم اے کے صوبائی کنٹرول روم سمیت پنجاب بھر کے ضلعی ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن تھا۔ زلزلے کی گہرائی 191 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ متعلقہ انتظامیہ عمارتوں کی چیکنگ میں بھی مصروف ہے۔ ٹوبہ ٹیکسن سے پیر محل تک الیکٹرک گرین بسوں کی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6 ماحول دوست بسیں ٹوبہ سے پیر محل تک چلا دی گئی ہیں۔ الیکٹرک بسیں صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک چلیں گی۔ ٹوبہ ٹیکسن سے پیر محل روٹ پر الیکٹرک بسوں کے 30 سٹاپ بنائے گئے ہیں۔ جنرل بس سٹینڈ ٹوبہ، ڈی سی آفس، نادرا آفس، سبزی منڈی، ڈی ایچ کیو ہسپتال اور 3 مرلہ سکیم کے سٹاپ شامل ہیں۔ چک 296، چک 294، چک 297، ایگریکلچر یونیورسٹی، چک 349، چک 298 اور ڈرٹ سٹاپ بھی گرین بس روٹ میں شامل ہے۔ چک 347 گورنمنٹ ہائی اسکول، چک 347 حیدر شاہ موڑ، کھیکھا بنگلہ موڑ، 30 موڑ، چک 307 اور چک 342 بھی روٹ کا حصہ ہے۔ اضافی آبادی شورکوٹ موڑ، نادرا آفس، پیر محل، چک 319 گوسیا چوک اور جنرل بس سٹینڈ پیر محل بھی روٹ میں شامل ہے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال پیر محل، اللہ والا چوک، ریلوے موڑ اور درخادہ موڑ تک گرین بس شہریوں کو سفری سہولیات فراہم کرے گی۔ گرین الیکٹرک بس سروس سے طلبہ، ملازمین اور روزانہ سفر کرنے والے شہری مستفید ہوں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ الیکٹرک بسیں چلنے کے بعد سفر کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ فیصل آباد میں میٹرو بس منصوبے کے روٹس پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ میٹرو بس روٹس جھنگ روڈ، جڑاوالا روڈ پر پیڈسٹرین برج ختم کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد میں میٹرو بس منصوبہ 6 کے روٹس پر تعمیراتی کام جاری۔ میٹرو بس روٹ جنگ روڈ پر، جڑاوالا روڈ پر پیڈسٹرین برج ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ زرعی یونیورسٹی، نڑوالا روڈ، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں پیڈسٹرین برج تعمیر ہوں گے۔ میونسپل کارپوریشن 2 کروڑ کی لاگت سے پیڈسٹرین برج تعمیر کرے گا۔ ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں نئے گرین فیلڈ ایئرپورٹ کا منصوبہ کنسلٹنٹ کی جانب سے ماسٹر پلاننگ اور فیزیبلٹی اسٹڈی پر کام جاری ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کو گرین فیلڈ ایئرپورٹ کے لیے 2000 ایکڑ جگہ درکار ہے۔ فیصل آباد گرین فیلڈ ایئرپورٹ کا منصوبہ کنسلٹنٹ کی جانب سے ماسٹر پلاننگ فیزیبلٹی اسٹڈی پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کو گرین فیلڈ ایئرپورٹ کے لیے 2000 ایکڑ جگہ درکار۔ فیصل آباد ایئرپورٹ اتھارٹی نے کمشنر فیصل آباد سے 2000 ایکڑ جگہ مانگ لی۔ نئے ایئرپورٹ کے لیے چکجمرہ سمیت تحصیل صدر کے مختلف علاقوں میں جیو ٹیگنگ میپنگ کرانے کا فیصلہ۔ فلائی زونز کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارش کردہ مختلف جگہوں کے سیمپلز ارتھ کلیکشن کی جائے گی۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ عمران اسلم، 41 فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم کے تحت انگلش لینگویج ٹریننگ کرنے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر۔ ٹریننگ حاصل کرنے والے اساتذہ کی کنوینس الاؤنس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران اساتذہ کا کنوینس الاؤنس کاٹ لیا جاتا ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے ٹریننگ حاصل کرنے والے اساتذہ کا کنوینس الاؤنس جاری رکھنے کے لیے سی ای او ایجوکیشن کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ٹریننگ حاصل کرنے والے اساتذہ کی کنوینس الاؤنس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ تعلیم کے تحت انگلش لینگویج ٹریننگ کرنے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے۔ ٹریننگ حاصل کرنے والے اساتذہ کی کنوینس الاؤنس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران اساتذہ کا کنوینس الاؤنس کاٹ لیا جاتا ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے ٹریننگ حاصل کرنے والے اساتذہ کا کنوینس الاؤنس جاری رکھنے کے لیے سی ای او ایجوکیشن کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے کہ محکمہ تعلیم کے تحت انگلش لینگویج ٹریننگ کرنے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि जंग में यौम आशूर के मौका पर जुलूस और मजालिस का पुरअमन इनेकाद किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डीपी साजिद हुसैन से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला पंजाब की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर डीपीओ साजिद हुसैन को शाबाश। जिला भर में मजमूई तौर पर 249 जुलूस बरामद हुए और 164 मजालिस से अहसाब बर्पा की गई, जिनकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। शहर में अमनो अमान की मिसाली सूरत हाल और बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब ने डीपीओ साजिद हुसैन से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यौम आशूर को पुरअमन बनाने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने पर डीपीओ जंग साजिद हुसैन और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ जंग साजिद हुसैन खुद फील्ड में मौजूद रहे और तमाम मरकजी जुलूसों और मजालिस की फिजिकल मॉनिटरिंग करते रहे। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने यौम आशूर को पुरअमन बनाने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने पर डीपीओ जंग साजिद हुसैन और उनकी पूरी टीम को शाबाश दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के लिए ड्यूटी रेस्ट और हफ्तावार छुट्टी से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। एहलकार अब दोनों छुट्टियां कर सकेंगे। फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के लिए ड्यूटी रेस्ट और हफ्तावार छुट्टी से मुतालिक नया हुक्म जारी कर दिया। ड्यूटी रेस्ट के साथ वीकली ऑफ आने पर एहलकार दोनों छुट्टियां कर सकेगा। एहलकारों ने शिकायत की थी कि ड्यूटियां रेस्ट अगर वीकली ऑफ के साथ आ जाएं तो इन्हें वीकली ऑफ करने नहीं दी जाती। एसएसपी हेडक्वार्टर पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब ने रीजनल अफसरान को नए एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी है। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर में पार्कों के मसाइल हल ना हो सके। गुलिस्तान कॉलोनी में कायम गौसिया पार्क की हालत जार ना बदली। मजीद अपडेट कर रहे हैं तलहा बाजपा। जी तलहा, बताइएगा। शहर फैसलाबाद में पार्कों के मसाइल हल ना हो, शहर के अक्सर और बेशतर पार्क खस्ता हाली का शिकार होने लगे। इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान कॉलोनी में कायम गौसिया पार्क में, जिसकी अगर बात करें तो अरसा दराज से पार्क की हालत जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है। ना तो यहाँ पे घास है, घास पूरी तरह नापैद हो चुकी है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है। बात करें इलाके का वाहिद तफरीही मुकाम है, लेकिन शहरी यहाँ पे आने से कासिर हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जो पार्क में खेलने के लिए आए थे, छुट्टी का रोज़ है, उनसे बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, पार्क में आप यहाँ पे खेलने के लिए आई हो तो पार्क की कंडीशन के बारे में क्या कहोगे? पार्क में सारे झूले भी सारे मतलब टूटे हुए हैं और यहाँ पे ना कोई घास है और कंडीशन भी बहुत ख़राब है पार्क की। इसमें इतनी ग्रीनरी भी नहीं है, दरख्त भी टूटे हुए हैं, टहनी भी नहीं है इसकी। जी, जैसे कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका भी यही कहना है कि पार्क में जो है वो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे घास जो है वो नापैद है। हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए पार्क होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जब खेलते हैं तो धूल और मिट्टी से वो जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो बच्चों का भी यही मुतालबा है PHO काम से कि पार्क की हालत को जल्द अज जल्द बेहतर बनाया जाए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ, खेलने यहाँ पे आए थे, खेलते हुए देखा भी आपको मैंने, धूल मिट्टी उड़ती है, क्या कहोगे? जी, इसी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं, बहुत से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं अच्छा, सफाई वगैरह भी कोई नहीं है। हमारी गुजारिश है कि लिहाजा सफाई हो गवर्नमेंट से, बस यही बात। जी, जैसे कि यहाँ पे सबका यही मुतालबा है कि पार्क की हालत को जल्द अज जल्द बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ये इस इलाके का वाहिद तफरीही मुकाम है। रात होते ही पार्क की जो लाइट्स हैं वो भी अरसा दराज से गैर फाल हैं, इसलिए अंधेरे में रात होते ही पार्क डूब जाता है। और नशे के आदी जो अफराद हैं उनकी ये अमाजगाह बन चुकी है और शहरी अपने वाहिद तफरीही मुकाम पर आने से कासिर है। उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द पार्क की हालत को बेहतर बनाया जाए, ताकि वो अपने इस इलाके के तफरीही मुकाम पर आके सैर व तफरीह कर सकें। जी तलहा, शुक्रिया अपडेट के लिए। फैसलाबाद के सुबहान अल्लाह चौक से मुल्हिका सीवरेज नाला खुला छोड़ दिया गया। स्लैब और हिफाजती दीवार ना होने से हादसात के खतरात बढ़ गए हैं। मुतादिद बच्चे नाले में गिर चुके। इलाका मकीनों का इंतजामिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से सीवरेज नाले की हिफाजती दीवार मौजूद नहीं। मुतादिद बार बच्चे नाले में गिरने के वाकयात पेश आ चुके हैं। मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी स्लैबें और हिफाजती दीवार मुकम्मल की जाए।
चिन्नौर शहर का इलाका मोहल्ला हाजी आबाद इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार है। हाजी आबाद में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, गलियां पानी से भर गई हैं। बच्चे बीमार होने लगे। गंदे पानी से अहले इलाका शदीद अजियत में मुब्तला है। का इलाका हाजीआबाद इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार। मोहल्ला हाजीआबाद में वासा इंतजामिया की मुबैना गफलत, जगह जगह सीवरेज का पानी गलियों में जमा हो गया। बच्चे बीमार होने लगे। गंदे पानी से अहले इलाका अजियत में मुब्तला। इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ 15 दिन से पानी जमा है, हम गंदे पानी में रहने पर मजबूर हैं। मुतादिद बार दरखास्त कर चुके हैं मगर इंतजामिया का कोई शख्स नहीं आया। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ रहना इंतहाई मुश्किल है। मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि मोहल्ला हाजीआबाद के मसाइल पर सख्त एक्शन लें। ਭਈਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੇਵਰੇਜ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਨਾ। ਸੇਵਰੇਜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। सर मुतालबा यही है कि गफूराबाद का पानी जो है सारा इधर आ रहा है। बारिश जब होती है, बारिश ख़त्म होने के बाद तकरीबन 1 घंटा तक पानी आता रहता है और हमारे घरों के नीचे से जो है ना पानी गुजरा हुआ, घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। शहर में इस तरह की सूरत हाल वासा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अली सिटी 41 चिन्नौर। डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर आयशा रिजवान ने ज़ेरे तामीर चिन्नौर फैसलाबाद वन वे रोड का दौरा किया और मनसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान डीसी ने मनसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों, काम के मियार, रफ्तार और मुख्तलिफ मराहिल का मुआयना किया। सड़क के दरमियान कायम ग्रीन बेल्ट पर जारी शजरकारी के काम का भी मुशाहिदा किया। एक्सियन हाईवे मोहम्मद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर को मनसूबे की मजमूई पेशरफ्त, तकमील के मुख्तलिफ मराहिल और बाकी मानदीदा काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने कहा कि तमाम तामीराती काम मुकर्ररा मेयार के मुताबिक और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने शहर के एरिया में जारी तामीराती काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की है। डीसी ने ग्रीन बेल्ट पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने, उनकी मुनासिब देखभाल और सड़क के इतराफ खूबसूरती बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत की। उनका कहना था कि शजरकारी न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगी बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि ज़िला इंतजामिया अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों की बरवत और मियारी तकमील को हर सूरत यकीनी बनाएगी। टोबा में तरक्याती कामों की बहार। जिला भर में 20 अरब 49 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम तेज। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने वाटर स्टोरी टैंक्स और ड्रेनेज मंसूबा 15 जुलाई तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। टोबा टैक्सी में डिप्टी कमिश्नर उमर मेला की ज़ेरे सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। टोबा तहसील में 9 अरब 48 करोड़, कबालिया में 4 अरब 54 करोड़ और गोजरा में 6 अरब 47 करोड़ रुपए की मंसूबे जारी। 209 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की बहाली और तामीर पर काम किया जाने लगा। 4215 मैन होल कवर्स, 11.15 किलोमीटर ड्रेन सिस्टम और 16.26 किलोमीटर जदीद सीवरेज लाइनें मंसूबे का हिस्सा है। 12 पार्कों की बहाली, 195 किलोमीटर गलियों की तामीर और बहाली और कलरफुल टफ टाइल्स की तनसीब की जाएगी। 16.25 मिलियन गैलन योमिया इस्तेदाद के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 3 नए डिस्पोजल स्टेशन और 3 की बहाली भी मंसूबे में शामिल है। महकमा माल की आबियाना रिकवरियों को ब्रेक लग गई। फैसलाबाद से आबियाना सालाना टारगेट 1 अरब 23 करोड़ में से सिर्फ 67 करोड़ की रिकवरियां हो सकी। फैसलाबाद की तहसीलों में आबियाना ज़राई इनकम टैक्स की रिकवरी सुस्त रवि का शिकार है। फैसलाबाद के 6 तहसीलों में आबियाना की मद में 56 करोड़ रिकवरी होना बाकी है। ज़राई इनकम टैक्स के 19 करोड़ सालाना टारगेट में से 17 करोड़ इकट्ठा किया जा सकेगा। तहसील सदर और सिटी समंदरी, तांतियावाला, जड़ावाला, चकझुमरा में रिकवरियां सुस्त रवि का शिकार हैं। माली साल 2026 के इख्तिताम पर चंद रोज बाकी रह जाने के बाद 22 चिन्नौर के ई रजिस्ट्रेशन सेंटर पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने वालों का शदीद रश देखा जा रहा है। शहरी 1 जुलाई से मुतवक्का डीसी रेट्स में इजाफे और नए टैक्स रेट से बचने के लिए
जल्द अज जल्द रजिस्ट्री मुकम्मल करा रहे हैं। रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक 30 जून तक ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा ताकि फाइलों का बैकलॉग ना रहे। सेंटर पर सुबह से शाम तक लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। शहरियों का कहना है कि 1 जुलाई से प्रॉपर्टीज की डीसी रेट्स में इजाफा मुतवक्के है। इसके साथ ही नए माली साल में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आयद मुख्तलिफ टैक्स रेट्स में कमी या इजाफे का इम्कान है, जिससे रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। नए इजाफों से बचने के लिए हम मौजूदा माली साल में ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं। ज्यादातर खरीदार और डीलर्स 30 जून से पहले दस्तावेजात मुकम्मल कराने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू स्टाफ ने बताया कि अमले की तादाद बढ़ाकर शिफ्टों में काम लिया जा रहा है ताकि तमाम दरख्वास्तें मुकर्रर वक्त पर निपटाई जा सकें। उन्होंने शहरियों से अपील की कि तमाम मतलूबा कागजात मुकम्मल लेकर आएं ताकि आखिरी दिन रश के बायस किसी को दुश्वारी ना हो। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट।